stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized vehicle. At 20 seconds flight time, we have reached Mach 5, which means it is flying at 5 times the velocity of sound. And with this, the vehicle has achieved hypersonic velocities. It looks like we do have successful burnout, and the flight trajectory is tracking as per the prediction. Rocket is now at the altitude of 66 kilometers, 67 now. We have completed 80 seconds of flight time. We are around 34 seconds away from the launch pad, and the totally intended trajectory is being followed. The present altitude is 75 kilometers. As we slowly go towards our target of crossing 80 kilometers and way beyond that, nominally we expect to be around 100 kilometers when the peak altitude occurs. See the screen. Views from the Mission Control Center. 86 kilometers in altitude. We are at 85 kilometers now, and slowly and steadily we are reaching our peak altitude. If you can see it on the screens, the altitude profile is being shown. Around 133 seconds have passed. We are very close to our peak altitude. We are now at around 88 kilometers peak altitude, and everything has gone as per we have planned. We are very close to the peak altitude now. The peak altitude performance has been reached at around 155 seconds, and now slowly the rocket will start its descent. Actually, it has just started from 88 kilometers. Now it has come to around 87.1 kilometer. The peak altitude being met, this mission today has given a good, successful, satisfactory performance as intended by us. जी हाँ, एक सफल उड़ान, प्रथम उड़ान विक्रम एस के लिए प्रारंभ बड़ा ही रोचक रहा। यह रॉकेट अपने गंतव्य तक भी पहुंचा और अब अपनी ऑल्टीट्यूड को घटाने की कोशिश में मात्र 70 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पर अब यह रॉकेट स्थित है। This rocket achieved the apogee of 89.5 kilometers. That is, the peak altitude achieved by this rocket was 89.5. Our target was to cross 80 kilometers. As you all know, 80 kilometers is commonly defined as the start of space. So this rocket successfully went into space as we intended. And now, after completing its mission of achieving the peak orbit, creating the conditions for the payloads to function, and completing its job successfully, it is on its way back to a safe splashdown in the Bay of Bengal as we have intended. The range right now is 115 kilometers away from Shar, and we expect it to impact somewhere around 130 kilometers away from Shar. The whole thing has gone as per planned. ऑलराइट, गर्व का मूवमेंट वो हमारे लिए, और काफ़ी सारी तालियों और चीयर्स के बीच में जैसे कि हमने विक्रम एस को यहाँ पर लॉन्च होते हुए देखा। स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है विक्रम एस, और जैसे कि पिछले कई महीनों से बात भी की जा रही है कि काफ़ी सारी भारतीय कंपनीज यहाँ पर अब सैटेलाइट्स और रॉकेट्स बनाने लगी हैं। तो एक गर्व का क्षण यहाँ पर क्लियरली भारत के लिए, एज यहाँ पर इसरो श्रीहरिकोटा से देश का पहला निजी यानी कि इंडिजिनस रॉकेट यहाँ पर लॉन्च करता है। और जैसे कि समझाया भी जा रहा था कि यहाँ पर इसकी रेंज 80 किलोमीटर
किलोमीटर होने वाली थी, लेकिन उसको भी हमने यहाँ पर पार किया है। एक स्टैंडर्ड रेंज यहाँ पर 80 किलोमीटर की मानी जाती है, लेकिन 89.5 किलोमीटर तक ये रॉकेट यहाँ पर चला है। एरोडायनामिक स्टेबलाइज्ड व्हीकल के नाम से इसे यहाँ पर छोड़ा गया है, और ये पहली बार, जैसे कि मैंने कहा कि एक गर्व के मूवमेंट है ये भारत के लिए कि इसरो ने देश का पहला निजी रॉकेट यहाँ पर लॉन्च किया है। एज ऑफ नाउ जो भी हम यहाँ पर सुन रहे थे इसरो से उस लॉन्च के बारे में, सब कुछ यहाँ पर एज डिसाइडेड, एज थॉट, एज कैलकुलेटेड यहाँ पर हुआ है। तो वो हम आपके लिए डायरेक्ट यहाँ पर इसरो की तरफ से वो प्रदर्शन यहाँ पर लाते हुए क्लियरली काफी सारे रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स कहा जा रहा है कि अब भारत में बनाए जाएंगे। सरकार की तरफ से काफी सारे मेजर्स, सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प भी यहाँ पर दी गई है, तो उन कंपनीज पर तो ऑफकोर्स यहाँ पर नजर रहेगी ही। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे हमने आपको दिखाया कि श्रीहरिकोटा से विक्रम एस आज यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च होता हुआ नजर आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर कमोडिटीज की कर लेते हैं, जहां पर कच्चे तेल से ये शुरुआत करेंगे, जहां पर महंगाई की आहट से कच्चे तेल में कुछ घबराहट देखने को मिली है। देर रात यहाँ पर 3% की गिरावट थी, और इस हफ्ते की अब तक अगर बात की जाए तो 5 से 6% तक की गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते भी 3% की गिरावट थी, यानी कि अब 2 हफ्ते अगर आप मिला लें तो यहाँ पर करीबन 8 से 9% की गिरावट कच्चे तेल में दर्ज की गई है। इवन एज आधे % की तेजी है, उसके बावजूद भी जस्ट अबाउट $90 प्रति बैरल आपकी स्क्रीन पर होल्ड करता हुआ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, कुवरजी ग्रुप के रवि दियोरा। हम खाने के तेलों पर भी बात करेंगे, जहां पर ऑयल मिल एक्सपोर्ट के आंकड़े आ गए हैं। अगले सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। लेकिन ध्यान फिलहाल हमारा कच्चे तेल पर ही है, क्योंकि मेजर हेडलाइंस यहां पर से आती हुई। धर्मेश, कैसे देखते हैं ये मुनाफा वसूली कच्चे तेल में? क्या 90 का स्तर जो है वो टूटता हुआ नजर आता है? वीकली क्लोजिंग आप यहां पर कैसी बनती हुई देखते हैं? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो इनफैक्ट लास्ट 3-4 हफ्ते से हम यही कह रहे हैं कि मार्केट में आने वाले समय में और मंदी आने की गुंजाइश काफी हाई है। ये जो सडन स्पाइक देखने मिला था वो टेम्पररी स्पाइक था, क्योंकि 10 ईयर यील्ड और डॉलर में गिरावट आई थी, इस कारणवश कमोडिटी में एक स्पाइक मिला था। बट फंडामेंटली अभी भी कच्चे तेल में मंदी है। अगर आप आगे के 6 महीने भी देखें तो सारे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ पे बाइंग करने की स्थिति में नहीं है। और प्लस जो ओपेक है उसमें भी काफी प्रेशर है यूएस से कि वो अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा कट ना करे। प्लस चाइना के लॉकडाउन और कोविड के कारण के वश मार्केट में कंजम्पशन काफी लो हो चुका है। प्लस इन्फ्लेशन डेटा इतनी हाई है कि मार्केट में कंजम्पशन ही नहीं है। तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड मार्केट मंदी के माहौल में ही रहेगा। और ये स्पेशली इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है कि अगर कच्चा तेल नीचे आता है तो अपने ट्रेड रिजर्व में ज्यादा डेफिसिट ना हो। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गिरावट बरकरार रहेगी। और ब्रेंट की बात करें तो $87-85, और अगर नाइमैक्स की बात करें तो $78-77 के जो प्रीवियस लेवल है वो छू सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप देखें एमसीएक्स में, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6500 से 6300 के स्तर जो इसके प्रीवियस लो थे फिर से छू सकते हैं। तो आप उछाले में बिकवाली करके चल सकते हैं और मंदी का माहौल बरकरार रहेगा। जब तक मार्केट 7000 के नीचे है, फंडामेंटली टेक्निकली दोनों साइड मंदी रहेगी। ठीक है, तो 7000 के नीचे जब तक कच्चे तेल के भाव हैं, कमजोरी हैं, प्रीवियस लोज यानी जो कि 6300 के आसपास के उनको टच कर सकता है। धर्मेश का व्यू है। रवि, आपने आज के लिए या अगले 1 दिन 2 दिन के लिए क्या स्ट्रैटेजी क्रूड पर रेकमेंड की है अपने क्लाइंट्स को? और दूसरी बात, क्रूड के साथ साथ नेचुरल गैस पे भी अपनी राय दीजिए। कल हमने एक शार्प राइज देखा था, आज वापस थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। जरूर से काफी वोलेटिलिटी ऑलरेडी नेचुरल गैस में आ चुके हैं। अभी लेवल स्पेसिफिक बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में $6 का लेवल काफी अच्छी सपोर्ट के दौर पे काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि $6 का सपोर्ट थोड़ा बहुत नेचुरल गैस में इंटेक रह सकता है, क्योंकि वहां पे अभी सीजनलिटी ऑन हो रही है। तो इस हिसाब से नेचुरल गैस के थोड़े फंडामेंटल सप्लाई ड्रिवन रहेंगे। पर क्रूड में जो डिमांड रिलेटेड डिस्टर्बेंस है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्राइसेस एक रेंज 6500 से लेके 6900 के एक रेंज में शायद अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। साथ में दूसरा क्या है कि नेक्स्ट वीक में मंडे एंड ट्यूसडे कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अपडेट नहीं है, एंड वेंसडे सारी अपडेट आने, क्योंकि थर्सडे यूएस के मार्केट क्लोज है एंड फ्राइडे यूएस के मार्केट हाफ डे है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी वोलेटिलिटी होगी आपको वेंसडे इन्वेंट्री के साथ ही आएगी। तब तक एक टेपिड रेंज रहेगा 6500 से लेकर 6900। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो इंट्राडे ट्रेड लेना है तो उछाले पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 6790 के करीब एक बार बेच के ट्रेड करना है। 6920 स्टॉप लॉस, एक लिमिटेड डाउन साइड में 6600 तक के एक्सपेक्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में कर रहा हूं।
ऑल राइट, यानी कि मुनाफा वसूली या बिकवाली का ही ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है वीकली बेसिस, और जैसा कि आप देख सकते हैं उस चार्ट के थ्रू कि मंथली बेसिस पर भी हम यहाँ पर नेगेटिव में अब कारोबार करते हुए नजर आए हैं। ऑलमोस्ट $100 छूने के बाद अब 90 के आसपास कच्चे तेल के भाव चल रहे हैं। तो क्लियरली पिछले एक फोर्टनाइट में हमने $10 की गिरावट यहाँ पर कच्चे तेल के भावों में आते हुए देखी है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि कुछ उठापटक यहाँ पर भी देखने को मिली है। चीन में अब कोविड के मामले 23,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं, जो कि अप्रैल का हाई है। यानी कि मांग को लेकर चिंताएं चीन की तरफ से फिर से बनती हुई नजर आई हैं। धर्मेश, मेटल्स पे भी कुछ बहुत जो असर है वो उसी तरफ से आता हुआ नजर आया है। एक शॉर्ट कवरिंग के साथ हमने दिन की शुरुआत जरूर होते हुए देखी है, लेकिन यहां से स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? देखिए, बेस मेटल की बात करें, जो किंग है बेस मेटल, डॉक्टर कॉपर कहते हैं उसे, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉपर में थोड़ी सी बिकवाली करके चल सकते हैं। कॉपर का जो दायरा है अराउंड देखिए 620 से 650 का दायरे में ऑलमोस्ट एक महीना ट्रेड हुआ था, और जब 10 इयर्स यील्ड 430 से ऑलमोस्ट 4 के नीचे आई, तो अब देखिए मार्केट में एक सडन स्पाइक देखने मिला था और प्राइस ऑलमोस्ट 700 तक के लेवल छू चुका था। तो ये टेम्पररी फिनोमिना था, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, बट ये लेवल पे सस्टेनेबिलिटी काफी लो है। अभी भी मार्केट में डिमांड एज सच बढ़ी नहीं है, इन्वेंट्री और सप्लाई के कारण मार्केट में इतनी उठापटक देखने मिली है। बट मैं रेकमेंड करूंगा, ये अच्छी लेवल है, यहाँ पे फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं। 680 685 के लेवल पे मार्केट अभी भी टिका हुआ है, तो यहाँ पे आप बिकवाली करिए। 695 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड आप एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट 650 और 655 के जो लेवल जो आप शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 695 का रख के आप बिकवाली करके चल सकते हैं। दूसरी मेरी टॉपिक अगर आप देखिए तो मैं रेकमेंड करूंगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम काउंटर में भी काफी सुस्त ट्रेड है, ये काफी धीरे ट्रेड करता है, और अगर आप देखिए इसकी जो चाल है वो 200 से 220 की रहती है, यही रेंज में टिका हुआ है मार्केट। अभी 208 209 है, अगर आप लास्ट वीक के सत्र देखें तो 211 215 के लेवल्स पे थे। तो ये स्लो एंड स्टेडीली वीक हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 205 से 200 के स्तर फिर से छू सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा 208 पे बिकवाली करें, 211 का स्टॉप लॉस रखिए, और 205 से लेके 201 तक के स्तर के लिए आप एल्यूमिनियम में बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके धर्मेश, क्विकली सिल्वर पर भी अपने कमेंट्स दे दीजिए, क्योंकि यहाँ भी मेटल्स की तर्ज पर ही हम रिएक्शन इस पूरे हफ्ते आते हुए देखा है। आज ही प्राइसेस %0.5 ऊपर है, क्या व्यू है सिल्वर पर? देखिए, चांदी की बात करें तो चांदी में काफी एक सडन स्पाइक देखने मिला था। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट $18 से $22 तक के लेवल्स के लिए मार्केट एक रेंज में आ चुका था, बट ये टेम्पररी फिनोमिना था, क्योंकि आप देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों टैंडमली चल रहे थे। बट अभी करंट सिनारियो में मुझे लगता नहीं कि मार्केट ये लेवल पे टिकेगा ज्यादा, क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड मुझे लगता है कि प्राइस टॉप आउट हो चुका है। अराउंड 61,300 के लेवल्स पे आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं, और 61,800 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड 60,500 से लेके 60,000 के स्तर के लिए आप यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काफी थिनली ट्रेड हो रहा है, और $20 का जो स्तर है वो कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है, बट मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहाँ पे टिकेगा। 1950 से लेके $19 के लिए आप यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं चांदी में। राइट, चांदी में बिकवाली की राय है, और थिन ट्रेडिंग सेशंस हैं जो कि आगे जाकर और भी थिन होते जाएंगे जैसे जैसे हम यहाँ पर दिसंबर के महीने में आएंगे। लेकिन धर्मेश, क्या सोने में भी आपको लगता है कि एक पीक आउट होता हुआ नजर आया है? क्या कंसोलिडेशन देखेंगे हम यहाँ से? ना, चांदी अगर आप देखिए दोनों साइड में मुझे लगता है कि प्राइस पीक आउट हुआ है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दिसंबर में फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। आप खुद ही देखेंगे कि मार्केट में जैसे इंटरेस्ट रेट स्पाइक होगा, आपको एक अच्छी वॉलेटिलिटी आएगी, प्राइसेस स्पाइक मार के फिर से अच्छी खासी एक गोता लगा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि ये 53,000 काफी अच्छा लेवल है, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं आप। मार्केट ये लेवल पे काफी दिन तक टिका हुआ है, बट एक्सपेक्ट करिए कि वॉल्यूम काफी कम हो चुका है। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में पिछले महीने ऑलमोस्ट 1200 रुपए का प्रीमियम सोने में चल रहा था। आज के तारीख में -300 रुपया स्पॉट चल रहा है। तो यहाँ पे बायर्स काफी कम हो चुके हैं। फंडामेंटली ये लेवल पे कोई बाइंग हो नहीं रही है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक्सपेक्ट करिए कि डॉलर फिर से बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो यहाँ पे एज अ सेफ हेवन बाइंग आपको ज्यादा देखने नहीं मिल सकती। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गिरावट बरकरार रह सकती है। 52,500 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ से एटलीस्ट $20 से $25 की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। ओके, तो सेल करने की सलाह सोने और चांदी दोनों में इन लेवल से धर्मेश का व्यू है। चलिए शुक्रिया धर्मेश, आप आए शो में और सभी पर आपने स्ट्रैटेजीज दी। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, और हम ओटमील एक्सपोर्ट पर तो चर्चा करेंगे ही, पाम ऑयल पर भी हमारी खास बातचीत होगी प्राइसेस को लेकर। बीवी मेहता हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।
कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है और हमारे साथ अब यहाँ पर एससीए के डॉक्टर बीवी मेहता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। जिस तरह की मुनाफा वसूली इस हफ्ते में खाने के तेलों में आते हुए देखिए, सबसे पहले तो उसी पर बात करना चाहेंगे क्योंकि पाम तेल में 10% की गिरावट है, सोयाबीन, सोया तेल सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदे हुए हैं। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप ये प्राइसेस? नहीं, अच्छा है फॉर कंज्यूमर एंगल से हम देखें तो अच्छा। ये प्राइस जो इतनी ऊपर गई थी तो नीचे आ रही एक अच्छा से, और ऐसा भी लग रहा है कि और थोड़ी प्राइस और नीचे आएगी क्योंकि वर्ल्ड का अगर आप प्रोडक्शन देखें तो ऑयल सीड का प्रोडक्शन देखते हो तो 610 मिलियन है, जो लास्ट ईयर से कम से कम 40 मिलियन ज्यादा है। तो नेचुरली अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑयल और द मील विल इंक्रीज सब्सटेंशियली। उनका प्रेशर बना हुआ है, पाम ऑयल का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इफ यू पुट ऑल थिंग्स टुगेदर, ऐसा लगता है कि देयर विल बी प्रेशर ऑफ सप्लाई देन डिमांड। डिमांड से सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस पे प्रेशर आएगा। आप देखें जो लास्ट एक वीक में कितने गिरे हैं, चाहे आप पाम लीजिए, चाहे सोया लीजिए, चाहे आप सनफ्लावर लीजिए, सबकी प्राइस गिरी है और वो कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है। फॉर्चुनेटली हमारे ऑयल सीड की प्राइस इतनी नहीं गिरी है, ताकि नहीं तो किसान को तकलीफ हो सकती थी। आज भी ऑयल सीड की प्राइस एमएसपी से काफी ऊपर है और जब भी हार्वेस्टिंग सोयाबीन और सब चल रहा है तो उसको कोई ये नहीं होगा, किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। एक अच्छी बात है और कंज्यूमर को तो फायदा हो ही रहा है जब भी प्राइस नीचे गिर रही तो। हाँ जी, एब्सोल्युटली। ये शोज करने का एक ये फायदा है कि ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रैटेजी तो बनती ही है, लेकिन आप शोज करते करते सुनते सुनते कुछ नया सीखते भी हैं। तो डॉक्टर मेहता, हमें नहीं मालूम था कि 610 मिलियन टन ग्लोबल एडिबल ऑयल प्रोडक्शन होती है। तो ये ऑयल सीड्स है, एडिबल ऑयल है, टोटल नंबर यहाँ पर क्या होता है? मिलियन ऑयल सीड की प्रोडक्शन है। ऑयल सीड की प्रोडक्शन है 610 मिलियन टन। हाँ, और वो जो लास्ट ईयर 580 था, 580 मिलियन से 618 मिलियन, तो रफली 38 मिलियन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इज इंक्रीज, एंड सो द ऑयल मिल एंड ऑयल प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज साइमल्टेनियसली। आपने कही कि भारतीय बाजारों में खाने के तेलों के भाव इतने नहीं गिरे जितने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरे हैं, तो एज ऑफ नाउ क्या डिफरेंस है दोनों प्राइसेस में? नहीं, प्राइसेस में डिफरेंस है, मगर सी आज हमारे यहाँ पाम ऑयल ज्यादा आ रहा है। पाम और सोया सनफ्लावर आप देखें तो $400 का डिफरेंस है, तो इसके वजह से सॉफ्ट ऑयल नहीं आ रहा है, ज्यादा पाम आ रहा है। वो जो भी गैप जब भी कम होगा तो सोया और सनफ्लावर भी स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे को जैसा वर्ल्ड का भी फोरकास्ट हो रहा है सोयाबीन की प्रोडक्शन का, अगर वो मटेरियल जो खास करके साउथ अमेरिका में जो प्रोडक्शन फोरकास्ट है, अगर वो मटेरियल हो जाए तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रेशर एंड सोयाबीन प्राइस हैज टू कम डाउन। सोयाबीन सीड और ऑयल तो गैप कम होगा, then there will be larger imports of soybean from the South America. Now of course यूक्रेन का भी अभी माल तो आ ही रहा है, रसिया काफी माल भेज रहा है सनफ्लावर ऑयल, तो वहां भी उसकी शॉर्टेज नहीं है और सप्लाई चेन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल इंडिया। प्लस स्टॉक अगर आप देखें तो कम से कम हमारे पास आज 25 लाख टन का स्टॉक है, रफली 40 डेज रिक्वायरमेंट है। इसके लिए वहां भी एक कंफर्ट लेवल पे है, सप्लाई पे कंफर्ट लेवल है, प्राइस में भी एक रीजनेबल लेवल पे पहुंचे। और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कंज्यूमर के आपको भी, जो आज से 5 साल पहले हम 80-90 रुपए का जो तेल खाते थे किलो पे, अभी हम भूल जाना चाहिए। 120-125 की रेंज में ही तेल बिकेगा और तभी हम किसान को सही दाम दे पाएंगे। अगर आप 80 में देना चाहते हैं तो किसान एमएसपी के भी नीचे चला जाएगा, तो उनका भी हित देखना है। ऑलवेज हम कंज्यूमर की बात करते हैं, पैम्परिंग करते हैं कंज्यूमर को ज्यादा, किसान को छोड़ देते हैं जो पैदा करता है। तो अभी उसको भी सही दाम मिले, वो तो अपना फोकस हो जाए ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े और आत्मनिर्भरता की ओर चले। अगर आपको सही ना दाम नहीं देंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, दूसरे क्रॉप में चले जाएगा। जी बिल्कुल। मिस्टर मेहता, एक और मुद्दा है, उस पर भी आपके क्विकली व्यू ले लेते हैं, वो है ऑयल मिल्क एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि हमने ऑयल मिल्क एक्सपोर्ट्स में एक डिसेंट तेजी आते हुए देखी है। वहीं दूसरी तरफ जो सोयाबीन मिल्क का एक्सपोर्ट है वो 8% गिरते हुए दिखा है। तो फिलहाल अब यहाँ से क्या ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, स्पेशली ऑयल मिल्क एक्सपोर्ट्स के? क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये तेजी आई है और क्या हम फर्दर इंप्रूव होते हुए देखेंगे एक्सपोर्ट्स? 6 महीने में तो वी आर टोटली आउट प्राइस थे। कम से कम $250 से $300 का सोयाबीन मिल का डिफरेंस था। इंडियन सोयाबीन और $700-800 पे था, जब इंटर से $450-500 पे चल रहा है। तो अभी जो है प्रैक्टिकली वी आर द सेम लेवल, सोयाबीन इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट द सेम लेवल। आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास आज जो क्रॉप की नंबर मिला 120 लाख का क्रॉप, कम से 10 लाख का कैरी को 130 लाख टन, उसका मतलब आपके क्रशिंग के लिए 105 लाख टन अवेलेबल है।
और इसका मतलब 85 लाख टन ऑफ सोयाबीन मिल प्रोड्यूस हो सकता है। अगर आपकी लोकल डिमांड 60 लाख टन की सोयाबीन मिल की है तो आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ताकि आपका यू आर एबल टू गिव द राइट प्राइस टू द फार्मर। और जो अभी जो रेट चल रहा है 5,700 5,600, ठीक है, कंज्यूमर के लिए भी ठीक है और क्रशर के लिए भी ठीक है और किसान को भी ठीक है, क्योंकि आप 4,300 के एमएस के सामने आज उसको 5,600 मिल रहा है तो अच्छे भाव है, दोनों के लिए कंफर्ट लेवल है। हो सकता है 200-300 रुपए और नीचे आएगा, क्योंकि जो एरावल पिकअप हो रहा है और साथ में डिमांड भी हो रही है। पर एक चीज जो बीच में आ रही है वो एक फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है आज सोयाबीन में, वो खोलना चाहिए। अगर वो खुल जाए तो वो सपोर्ट कर देगा किसान को, फार्मर को सही दाम मिलेगा तो मार्केट नीचे नहीं आएगी और किसान को सही दाम मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है और यहाँ पर मिस्टर मेहता ने अपने व्यूज दिए भी, लेकिन रवि भी हमारे साथ मौजूद है। समय की कमी है, रवि क्विकली ग्वार पैक पर आपके कमेंट ले लेते, लेनी तो स्ट्रैटेजी थी बट समय थोड़ा कम है। ग्वार गम आज वापस 6% ऊपर है, ग्वार सीड 1% ऊपर है, क्या व्यू इन लेवल से? डेफिनेटली गुआर में एक अच्छी मोमेंटम है, वो आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर नेक्स्ट वीक रह सकता है। पर्टिकुलर गुआर गम में मुझे लग रहा है कि अगर ये लेवल नेक्स्ट वीक में मींस के अभी जो ओपन होगा सर्किट वो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में होगा, तो अगर 12,600 से 700 तक आए तो वहां पे थोड़ा मुनाफा वसूली करना है हमें। दीपावली पे उसको 8900 पे रिकमेंड बाइंग सेट किया था, तो अच्छी तेजी आ चुके हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी गुआर गम में कर लेना चाहिए। ओके चलिए, तो ये व्यू आपको मिला है ग्वार पैक पर भी, और हमने पाम ऑयल और एडिबल ऑयल्स पर मिस्टर मेहता से भी चर्चा की। शुक्रिया रवि आपका, मिस्टर मेहता आपका भी शुक्रिया, दोनों ही मुद्दों पर अपने व्यूज देने के लिए और बताने के लिए क्या ट्रेंड्स आगे रह सकते हैं। शो को समेटने का वक्त है और इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।